Hello everyone, this is a discussion on the mock test paper for CA Final Financial Reporting new course for December 2021 attempt. Institute ने दो mock test paper with suggested answer publish किए हैं, ये MTP1 का discussion है. The idea of this particular video is to quickly within cover up each and every particular question of this MTP in the form of a discussion. So we are not going to read each and every line and word of the particular question or solve each and every question. Rather, we are going to quickly go through the question and understand which provision is being tested here and how will we derive the answer to this, what important points which you should keep in mind और कहाँ आप possibly हो सकता है गड़बड़ कर दे, उस पे हम एम्फेसाइज करेंगे. दी आइडिया इसकी एग्जाम से 15-20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 दिन पहले, अगर आप 15 से 20-25 मिनट के अंदर चाहते हैं कि पूरा का पूरा आप मॉक टेस्ट पेपर आपका एक बार रिव्यू कर लें, देन इन दैट केस दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर यू. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन की. दिस इज वन ऑफ दोज डिफरेंट क्वेश्चंस. Let me tell you, MTP1 has a certain set of questions which have not been asked in any of the previous exams or given in the RTP or MTP or even the study material. That means ये नए questions हैं. So not most of them, but yes, there are a few of them which are new, primarily the initial ones. And that is why we will put a little more time on these particular question. Question number 1A बात करता है IND AS 116 के transitional provisions की. What are transitional provisions? Now this is not first time adoption कि हम पहली बार अगर IND AS फॉलो कर रहे हैं तो क्या होगा. रादर ये बात करता है कि पहले आप IND AS 17 फॉलो करते थे, यानी आपकी कंपनी ऑलरेडी IND AS ही फॉलो कर रही थी और IND AS 17 से नया स्टैंडर्ड IND AS 116 2019 में आ गया. इस कारण से अब आपको अकाउंटिंग IND AS 17 की जगह 116 में करना होगी. तो जो आपकी एग्जिस्टिंग लीजेस हैं जिसकी आप ऑलरेडी अकाउंटिंग IND AS 17 में स्टार्ट कर चुके हो और वो लीज कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म कंप्लीट नहीं हुए, तो आज के बाद जब से 116 लग गया है तब के बाद से आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स की अकाउंटिंग कैसे करोगे. तो ये क्वेश्चन ट्रांजिशन फेज की अकाउंटिंग की बात करता है. नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ उसी साल में रेलेवेंट होते हैं जिस साल में नया स्टैंडर्ड आता है, यानी एट बेस्ट इसका रेलेवेंस 2020 तक था. Nevertheless, the institute has asked this particular question in the MTP. I'm not saying one of the most probable questions, but then yes, this is one of those kind of questions which you possibly may not practice too many or too much, and that is why you should carefully look at this question. क्वेश्चन एस की एक रिटेलर है LSE जिसने 3 साल की रिटेल स्पेस की लीज 1 अप्रैल 2001 के लिए विद एनुअल पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज विच वर ड्यू ऑन 31st of March 2, 3 and 4. सो बेसिकली एंड ऑफ द ईयर से लीज पेमेंट आपके स्टार्ट हो रहे हैं और इस लीज को ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई किया गया था एज पर द erstwhile अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच शुड आइडियली बी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. नेवरदलेस The retailer initially applies IND AS 116 for the first time. तो ध्यान रखना ये 101 नहीं है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन नहीं है. दिस इज 116 बिकॉज हम पहली बार 116 लगा रहे हैं, ना कि हम पहली बार IND AS लगा रहे हैं. फॉर द एनुअल पीरियड बिगनिंग एट 1 अप्रैल 2003. तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2003 या 13 या 23 वॉट एवर यू से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कॉल इट 2003. 1 अप्रैल 2003 को IND AS 116 में डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन माना जाता है. The incremental borrowing rate on the date of initial application, which is 1 April 2003, is 10%, whereas on the commencement of the lease, which is 1 April 2001, is 12%. तो अब इसी बात है, समय के साथ साथ रेट बढ़ते हैं और रियल लाइफ में भी देखा जाए तो रेट्स कम हुए हैं. तो 2003 में रेट 10% थे, पहले 12% थे. The right of use asset is subject to straight line depreciation over the lease term. And you have to assume that no practical expedients are elected. Lessee has no initial direct costs. There are no lease incentive. There are no DRS, decommissioning, removal or site restoration expenses. That's about it. आपको पूछा गया है what would be the impact for the lessee under 116 using the following transition approaches. And you've been given two approaches, full retrospective approach and modified retrospective approach. Okay. Very quickly,
इंड एस 17 और 116 में बेसिक या सबसे बड़ा डिफरेंस कहें तो वो लेसी की बुक्स में लीज को फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई नहीं करने का था। इसका मतलब यह कि एस 19 के जैसा इंड एस 17 कहता था कि अगर लेसी ने जो असेट लीज पर लिया है वो उसकी यूजफुल लाइफ या उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट उसकी कॉस्ट के बराबर, या उसके पास परचेज का ऑप्शन या ट्रांसफर ऑफ असेट या लीगल टाइटल ट्रांसफर होना एट द एंड ऑफ द टर्म, या स्पेसिफिकली लेसी के लिए बनाया गया असेट, अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो लेसी उसे फाइनेंस लीज मानेगा, अदरवाइज ऑपरेटिंग लीज मानेगा। फाइनेंस लीज मानेगा तो वो अपनी बुक्स में असेट और लीज लाइबिलिटी दोनों बुक करेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लीज अगर लेसी मानेगा तो सिंपल रेंटल अग्रीमेंट की तरह जो रेंट हर साल पे करना है उसका खर्चा बुक करेगा, बुक्स में कोई एसेट बुक नहीं करेगा। ये ट्रीटमेंट इंड एस 17 और एएस 19 में हुआ करता था। लेकिन 116 ने कहा कि एक्सेप्ट लो वैल्यू एसेट्स और शॉर्ट टर्म लीज विच इज 12 मंथ्स और लेस पीरियड के लिए जो की जाती है, सारी की सारी लीज लेसी के लिए हमेशा फाइनेंस लीज जैसी, समझने के लिए फाइनेंस लीज जैसी ट्रीट होगी। यानी लेसी ये कहेगा कि जिस दिन उसने लीज एग्रीमेंट किया है उस दिन जो उसे लीज पेमेंट करने हैं उसे डिस्काउंट करेगा प्रेजेंट वैल्यू पे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज असेट होगी सब्जेक्ट टू एनी एडजस्टमेंट फॉर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लीज इंसेंटिव्स वगैरह। यानी इफेक्टिवली स्पीकिंग ये अग्रीमेंट में भले ही लीज टर्म 3 साल की है पर इंड एस 116 के अनुसार इसकी अकाउंटिंग ऐसी होगी कि हमें डिस्काउंट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 3 लीज पेमेंट्स, और उतने अमाउंट की डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पे लीज लाइबिलिटी और राइट ऑफ यूज असेट रिकॉग्नाइज करना होगा। ये कब, अगर मैं 116 फॉलो करता, पर मैंने इंड एस 17 या एस 19 फॉलो किया जिसमें मैंने बुक्स में ना तो राइट ऑफ यूज असेट दिखाया ना लाइबिलिटी दिखाई। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई हुई थी। अब ट्रांजिशन अप्रोच क्या कहती है? तो 116 कहता है कि आपके एग्जिस्टिंग लीज एग्रीमेंट्स में वी विल गिव यू 2 ऑप्शन। वन इज द retrospective approach where you are completely following the Ind AS as if you've been following the Ind AS right from the beginning and accordingly doing your accounting। तो इसे फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच कहा जाता है, और इस अप्रोच के अंतर्गत आपको सिंपली ये बोलना है कि अगर मैं शुरू से लीज की अकाउंटिंग वैसी ही करता जैसा कि 116 कहता तो क्या होता। तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसी अकाउंटिंग शुरू से होती तो 2 लाख रुपए इंटू हम क्या करते हैं 12%, ओरिजिनल हमारा क्या था, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज पे 12% पर annum का लीज रेंट था। तो ये लॉजिक से अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो आई वुड हैव सिंपली सेड कि मुझे एन्युटी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो आई वुड कैलकुलेट द एन्युटी फैक्टर एज 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 2 3, इसको जीटी लगा लीजिए, और इनटू 2 लाख 480366 का मेरा राइट ऑफ यूज असेट और लीज लाइबिलिटी आती है फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में। और ये लॉजिक से हम क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम शुरू से अगर अकाउंटिंग इस लीज की कैसी करते हैं एज पर 116 करते तो क्या होती। दिस इज बेसिकली व्हाट द अकाउंटिंग वुड हैव बीन। इतने का असेट और इतने की लाइबिलिटी, और फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद में असेट आपका 3 साल में डेप्रिशिएट होने लग जाता। अब टेक्निकली आप यहाँ पे देखिए, फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करना होता है। तो आपके लिए डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन है 2003, तो इसका मतलब आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 3-4, बट आपका प्रीवियस ईयर होगा 2-3, ये भी आपको रीस्टेट करना पड़ेगा। तो आपको इफेक्टिवली ये सोचना पड़ेगा कि आपके वैल्यू असेट और लीज लाइबिलिटी की 1 अप्रैल 2002 पे कितनी आएगी। सो यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो 1 अप्रैल 2002 इज जस्ट 1 ईयर लेटर, तो इसका मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग जाएगा 1 साल का, तो इसकी बैलेंस जो बचेगी वो आएगी 320244। इतने पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा, आपका राइट ऑफ यूज असेट आएगा, और इसके ऊपर फिर प्रीवियस ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा 160122, ये डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और यहाँ पे भी इतना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और असेट जीरो हो जाएगा। तो इनफैक्ट आंसर में पूछा गया आपसे कि आपका इंपैक्ट लीज का क्या होगा ट्रांजिशन अप्रोच में। फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है, यू हैव टू शो द इंपैक्ट ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू जर्नल एंट्री कॉन्सिक्वेंट टू ट्रांजिशन फॉर द ईयर 2, 3 एंड 3, 4। तो हमें कहना होगा कि हम 2, 3 में इतना डेप्रीज असेट पे चार्ज करेंगे, 3, 4 पे भी इतना डेप्री चार्ज करेंगे, प्लस
1 अप्रैल 2002 यानी कि 2-3 के बिगनिंग डेट पे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री है, यू कह लीजिए कि आज के करंट फाइनेंशियल ईयर में हम 1 अप्रैल 2002 का एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे और कितने से एडजस्ट करेंगे, तो इन दैट केस वी विल हैव टू in the books we will have to calculate basically what, or we'll have to show a right of use asset. तब इसके लिए what we can possibly do is instead of spending too much time on solving this particular question, आपको मैं quickly यहाँ पे दिखा देता हूँ. आपको रेट 12% लेना है, इसे डिस्काउंट करके 480380 आपको लेके आना है. 480380 पे इतना डिप्री लगेगा तो आपका असेट 320254 पे आएगा. इस वैल्यू पे आपको असेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो असेट का रिकॉग्निशन जर्नल एंट्रीज के थ्रू अगर आप समझोगे तो जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी असेट वुड बी डेबिटेड बाय दैट अमाउंट 320254 एंड इसके ऊपर फिर आपको डेप्रिसिएशन 160122723 में और 160122734 में चार्ज करना पड़ेगा. ये तो मैंने आपको असेट साइड बता दी. नाउ लेट्स कम टू द लायबिलिटी एंगल. लायबिलिटी साइड में क्या होगा? तो सेम फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच है. तो लाइबिलिटी मैं कैलकुलेट करूंगा राइट एट द डे 1. तो डे 1 पे मेरी लाइबिलिटी मैंने कैलकुलेट करी थी 480366 आई थी. अब इसमें होगा ये कि 12% से इंटरेस्ट लगेगा और 2 लाख का रीपेमेंट हो जाएगा. जैसे आप नॉर्मली टेबल बनाते हैं तो 338009 या 338010 की मेरी लाइबिलिटी आएगी 1 अप्रैल 2002 की और उससे मेरा टेबल बन जाएगा. So my liability value which balance sheet through I'll record it will be 338010 आ रहा था, ये 026 लिया rounding of differences. And then if I make a table for liability, my liability table would start with on 31st March 2002 the liability would be shown at 338026 और ये ओपनिंग वैल्यू पे इतना इंटरेस्ट के एंट्री 2 लाख का रीपेमेंट ये बैलेंस एंड देन इंटरेस्ट के एंट्री 2 लाख का रीपेमेंट और बैलेंस आ जाएगा. तो इसकी जर्नल एंट्रीज पास करना पड़ेगी. आप कहेंगे कि सर मेरा राइट ऑफ यूज एसेट तो आपने रिकॉर्ड किया 320254 और लाइबिलिटी 338026, ये डिफरेंस आ रहा है. हाँ, तो इसे रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट किया जाएगा. एंड दैट इज व्हाई अगर आप पहली एंट्री देखोगे तो ये डिफरेंस आपका रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट हो गया. The idea is not to solve these particular questions. The idea is to just kind of quickly discuss these particular things. That gives you a good reference to understand what the provision is exactly. And then इसके बाद लाइबिलिटी आपकी 338 पे 12% से आप इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए. तो दिस इज नथिंग बट 338026 पे 12%. रीपेमेंट आपका 2 लाख रुपए का हो जाएगा. जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लग जाएगा एंड देन डेप्रिसिएशन लाइबिलिटी का पेमेंट ये जीरो हो जाएगा. दिस इज नोन एज द फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. वेरी क्विकली फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, मैं थोड़े से प्रोविजन इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने कम प्रैक्टिस करी हो ट्रांजिशनल प्रोविजंस की. दैट इज वाई फुल रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच में आप सिंपल है ये मानते हो कि शुरू से अगर मैं अकाउंटिंग 116 के अनुसार करता तो क्या होता है, इसमें प्रीवियस ईयर भी रीस्टेट होता है. प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बैलेंस में मैं राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी शुरू से 116 फॉलो करता तो कितनी आती, डिफरेंस रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट कर देता हूँ. डेफर्ड टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं दिया है क्योंकि टैक्स रेट क्वेश्चन में नहीं दी गई. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. लेट्स चेंज द कलर्स. मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच, ये क्या होता है कम वक्त. अंडर दिस पर्टिकुलर अप्रोच 116 ने आपको एक छोटा सा यू कह लीजिए कि वेवर दिया है या यू कह लीजिए कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से बचाने के लिए आपको एक इजियर अप्रोच अलाउ करिए ऑन ट्रांजिशन. ये आपको बेसिकली डिसाइड करना पड़ता है फॉर ऑल योर लीजेस एज टू विच अप्रोच डू यू वांट टू यूज. बट इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर अप्रोच इन दिस केस वन यू डू नॉट रीस्टेट द प्रीवियस ईयर फिगर्स, यानी कंपैरेटिव्स रीस्टेट नहीं होते हैं. इसका मतलब अगर आपका डेट ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन 143 है तो आप 3-4 ईयर में ही जो चेंजेस या इफेक्ट है वो देंगे. नथिंग विल गेट इंपैक्टेड इन द प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव फिगर्स. पहली चीज. दूसरी चीज, यहां पे हम सोचते हैं कि शुरुआत से अगर मैं मेरी अकाउंटिंग करता डेट ऑफ कमेंसमेंट से एज पर 116 तो अकाउंटिंग क्या होती. बट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हम पीछे बैकडेट का जाके नहीं निकालते, आज का लेते. रीजनिंग इसके पीछे ये है कि हो सकता है कई बार डिफिकल्ट हो कि आप 2 साल पहले या 10 साल पहले जब से आपकी लीज शुरू हुई है तब आपको क्या रेट पे लोन मिलता है. ये शायद हो सकता है उस समय आपके पास अवेलेबल ना हो इंफॉर्मेशन आज कि भाई 2 साल पहले क्या रेट पे इंटरेस्ट पे मुझे लोन मिलता या लीज पे सेट ले पाता. तो इसके लिए आप आज का इंटरेस्ट रेट ले लीजिए इन दिस क्वेश्चन 10% और सोचो कि अगर आप शुरू से इसकी अकाउंटिंग कैसे करते. आप अकाउंटिंग इसकी ये सोच के करते कि 10% वुड हैव बीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट
then in that case what would have been your right of use asset and what would have been your lease liability. ये सोच के आप कैलकुलेशन करेंगे with no changes to be made in the previous year. तब आप यहाँ पे देखिए कि essentially अगर मैं सेकेंड वाली केस पे आता हूँ which is the modified retrospective approach. In this particular case what we will do is, तो we will simply say कि अगर मैं शुरू से ये सोचता कि मेरी लाइबिलिटी क्या होती 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट की होती, तो मेरी लीज लाइबिलिटी कितने की आती, उसे मैं डिस्काउंट कर करके लेके आता, तो आप कितने की वैल्यू पे अपनी लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते 181,820 विच इज बेसिकली नथिंग. आप सिंपली क्या कर लो, आपको 2 लाख रुपए एक साल बाद देने हैं डिवाइडेड बाय 1.1, 181818 और 181820. दूसरा तरीका करने का हो सकता था कि आप ये कहते हैं कि 1 डिवाइड बाय 1.1, 1 2 3. दिस इज समथिंग विच यू हैव डन फॉर 3 years. Then -1 डिवाइड बाय 10%, ये मेरा एन्युटी फैक्टर आ गया इंटू 2 लाख. तो अगर मैं 10% से शुरू से अकाउंटिंग करता तो मेरी एसेट कितने पे आती 497,370 और लाइबिलिटी भी कितने पे आती 497,370. लेट्स से इट लाइक दैट. अब लाइबिलिटी को अगर आप अकाउंट फॉर करोगे तो इसमें क्या करेंगे, इंटू 1.1 माइनस 2 लाख इंटू 1.1 माइनस 2 लाख. इफेक्टिवली सिंपल सी बात है, आपको एक साल बाद जो पैसे देने हैं उसकी डिस्काउंटिंग, या 3 साल तक जो पैसे देने थे उसको डिस्काउंट करोगे और पैसे दोगे और फिर एक साल का बाकी रहेगा, सेम ही आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो इफेक्टिवली आपकी लाइबिलिटी इतनी आएगी, बट देन असेट कितने पे आएगा. तो अगर आप शुरू से इसकी अकाउंटिंग ये सोच के करते कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 116 लगा रहे होते, तो मैंने कैलकुलेट किया अभी असेट हमारा कितने पे आ रहा था. So we calculated the asset. I think we'll have to calculate it once more, or do we have that particular figure with us? 2.2. Okay, 497,370 is the value of the asset. अब अगर asset मेरा 497,370 पे आ रहा होता, ये 3 साल की लाइफ होती, तो 3 साल की लाइफ में हर साल इतना डेप्रिसिएशन लगता, 2 साल में इतना डेप्रिशिएट हो जाता, तो इतना कैरिंग अमाउंट बच जाता, तो 165,790 का asset आना चाहिए था. तो इफेक्टिवली मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, 165,790 और 787 राउंडिंग ऑफ, और 181818 होना था, ये 181806 लिया. Difference will be adjusted from retained earning entries done on 1st April 2003. No changes are made in 2-3. Now in 3-4 इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट बुक कर दूंगा 10% से और इतने का डिप्रिसिएशन चार्ज कर दूंगा, and that's about it, खत्म. ये आपके पास मॉडिफाइड रेट्रोस्पेक्टिव अप्रोच के अंतर्गत यू हैव दिस पर्टिकुलर ऑप्शन. इसके अंतर भी यू हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन जिसमें आप चाहो तो जितने का आप असेट बुक कर रहे हो सेम अमाउंट की आप लाइबिलिटी, इनफैक्ट जो अमाउंट की लाइबिलिटी उस अमाउंट का असेट बुक कर सकते हैं. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. इनफैक्ट क्योंकि अब आपका रिमेनिंग लीज टर्म 12 मंथ से ज्यादा नहीं है, तो अब आप चाहते तो शॉर्ट टर्म वैल्यू एग्जाम्पशन भी ले सकते थे. प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि हमने नहीं लिया है. तो इस क्वेश्चन को और एड ऑन करना चाहें तो वो पूछ सकते थे कि इसमें और क्या पॉसिबल ऑप्शंस है, तो हम बोल सकते थे भाई रिमेनिंग पीरियड 12 महीने का है, तो हम इसमें ये रेट्रोस्पेक्टिव अकाउंटिंग करने की बजाय इसे शॉर्ट टर्म लीज की तरह नॉर्मली जैसे ऑपरेटिंग लीज की तरह अकाउंट फॉर हो रहा था वैसा भी कंटिन्यू कर सकते थे. But those possibilities have not been discussed. I think इस पूरे पेपर में this was one of those particular questions which required the maximum time for discussion, just because there are not many practice questions on this in the module, or you might not have focused too much on it just because इसका relevance आज की तारीख में comparatively कम है. चलिए, now let's quickly move on to the next question. और सर आपने इतना समय तो पहले क्वेश्चन में ही लगा दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में कैसे पूरी एमटीपी कवर करेंगे, बट आई थिंक दैट वाज वर्थ इट. Nevertheless, कई सारे repetitive नेचर के क्वेश्चन आएंगे, we'll not really have to spend too much time on that. अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहे हैं देखें. A holding company being entity under consideration. इसका मतलब यह है कि आपसे जो आंसर या क्वेश्चन पूछा गया है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, इस होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से. Gives a loan or intercorporate deposit to subsidiary that is recoverable on demand at a rate of 10%. तो मैंने सब्सिडरी को पैसे दिए हैं, तो मेरे लिए ये फाइनेंशियल एसेट है. हाउ शुड लोन बी डिस्क्लोज्ड एज करंट? शुड सच लोन बी डिस्क्लोज्ड एज अ करंट और नॉन करंट एसेट इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी? तो अगर आपने ऑन डिमांड लोन दिया है तो इसका मतलब आप उसे करंट मान सकते हो, बट असेट्स के केस में द आइडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. नॉर्मली सब्सिडरी को लोन दिया तो हो सकता है कि आपने दिया ऑन डिमांड, बट आप शायद उसे कभी डिमांड ही ना करो क्योंकि अपनी ही कंपनी. तो यहाँ पे सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन या आपका इंटेंशन देखना पड़ेगा और वो मैटर करेगा.
इसलिए पूछा है हाउ रेलेवेंट वुड द कमर्शियल रियलिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन बी इन कंपैरिजन टू द लीगल टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो हम बोलेंगे कमर्शियल रियलिटी विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द लीगल टर्म्स बिकॉज as per Ind AS 1 or Schedule 3, an asset is classified as current asset if it is expected to be realized within 12 months after the reporting date. We have a legal right to realize it whenever we want, but if the entity does not expect to realize it because it is based on its past experience or based on the scenario of the business, it is unlikely that the amount would be demanded back. In that case, we will classify it as non-current. तो आपका आंसर होगा कि कमर्शियल रियलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी रादर देन द लीगल टर्म्स। अगर इंटेंशन नहीं है इसको जल्दी मंगाने का या पास्ट एक्सपीरियंस बताता है कि नॉर्मली है 12 महीने के बियॉन्ड कंटिन्यू किया जाता है तो नॉन करंट असेट शो किया जाएगा। इस तरह से आप आंसर देंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द सब्सिडरी कंपनी, how this loan or intercompany deposit that is repayable on demand would be classified as in the books of subsidiary। तो पहले में भले ही कंडीशनल आंसर है पर यहाँ पे करंट है क्योंकि लाइबिलिटी के केस में द रूल इज इफ इट इज ड्यू फॉर सेटलमेंट इट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एंटिटी टू डेफर सेटलमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। यहाँ पे सब्सिडरी इसको डेफर नहीं कर सकती क्योंकि डिमांड लोन का मतलब है जिसने दिया है वो जब मांगेगा तब पैसे ले सकता है एंड फॉर दिस रीजन सब्सिडरी के पास कोई राइट नहीं है डेफर करने का। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कमर्शियल रियलिटी लीगली ये ड्यू टू बी पेड विद इन 12 मंथ्स हो सकता है या लीगली देखा जाए तो हम इसको डेफर नहीं कर सकते फॉर 12 मंथ्स बियॉन्ड द रिपोर्टिंग डेट। तो इसके लिए इसे हमें करंट लाइबिलिटी क्लासिफाई करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ करंट नॉन करंट पूछा है तो हमें सिर्फ उतना ही बताना है। वी डोंट हैव टू टॉक अबाउट कि ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखेगा और कौन से हेड में आएगा। राइडर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है which are reviewing certain events which have occurred since its year end 31st March 2004. Financial statements were authorized for issue on 12th May 2004. So it looks to be an Ind AS 10 kind of a question. Ind AS 10 के question में it could be a good idea to just kind of plot if you are making a rough note on the last page the dates. Following events relevant to financial statement of March 2004 happened. Company granted stock appreciation right to employees on 1st April 2002. Based on 10 million shares at the date rights were exercised, stock appreciation rights provided employees with right to receive cash equal to appreciation in company's share price since the grant date. So it's a stock appreciation right granted और हमें cash देना है। Right vested on 31st March 2004 and payment was made on schedule on 1st May 2004. तो ये राइट यहाँ पर वेस्ट हो गई और पेमेंट यहाँ पे कर दिया गया। तो नाउ इट लुक्स टू बी एन Ind AS 102 काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रादर देन Ind AS 10। फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक अप्रिसिएशन राइट ऑन 31st March 2003 was 6। तो यहाँ इसकी फेयर वैल्यू 6 रुपए है। At 31st March 2004 it was 8 और यहाँ पे 8 रुपए है। And 1st May it was 9। जिस दिन एक्सरसाइज हुआ ये इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। Company has recognized liability for stock appreciation right as on 31st March 2002. This needs to be having a correction. ICI केस MTP में गड़बड़ है मेरे हिसाब से ये 2003 होना चाहिए। हाँ, however it won't make too much of a difference for your answer। आप वही सोच के आंसर सॉल्व करोगे क्योंकि 2002 में मैं क्यों बुक करूंगा भाई, सीधी सी बात है। जब मैं स्कीम ही 2002 अप्रैल में लेके आया हूं तो मार्च 2002 में कौन लाइबिलिटी बुक करेगा। तो दिस हैड बीन 3 based upon 102 share based payment but the liability was stated at same amount at 31st March 2004। यानी कि ये कह रहे हैं कि 31st March 2003 में मैंने इसकी अकाउंटिंग एज पर 102 करी but 31st March 2004 में I made no changes। तो क्या चेंजेस करना चाहिए। तो आपको बोला डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आवर इवेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट for 31st March 2004 taking into account implications of events occurring after the reporting period। So in this question you should ideally answer your or give your answer with reference to 102 primarily and then Ind AS 10। तो 102 के अंतर्गत what we do is stock appreciation right में सिंपल है कि हम every year end fair value लेते हैं और कितने options expected to vest है into fair value into उसे allocate कर देते हैं over the vesting period। उस लॉजिक से देखा जाए तो 31st March 2003 पे प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट एज पर Ind AS 102 बनना चाहिए था 10 मिलियन शेयर्स पे
On 31st March 2003 it was 6 and the vesting period was 2 years. यानी 30 मिलियन का प्रोविजन बनना था और इतना बना भी है क्योंकि लिखा हुआ है कि एज पर 102 बनाए. But then on 31st March 2004 the provision for stock appreciation right as per 102 should be all as employees have continued that particular period. सबने एक्सरसाइज भी किया है. into अब जो फेयर वैल्यू है which is 8 into 2 by 2 2 years of completed 80 million. That means 50 million का और एक्सपेंस बुक करना चाहिए. तो आप ये कहेंगे कि सबसे पहली बात आपको 50 मिलियन का खर्चा और बुक करना है. सेकंड, जो पेमेंट फर्स्ट में 2004 को हुआ है दिस इज एक्चुअली अ फ्रेश इवेंट क्योंकि इसकी वैल्यू जो 8 to 9 बढ़ी है. ये ऐसा नहीं है कि मैंने एस्टिमेट किया था 8 रुपए देना पड़ेंगे. ये फेयर वैल्यू थी उस दिन की और इंडेस 102 में हम एस्टिमेट नहीं करते कि कितने देना पड़ेंगे. हम ये देखते हैं कि ईयर एंड पे क्या फेयर वैल्यू है आपकी स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की, उसका प्रोविजन बनाते हैं. तो इंडेस 102 कहता ही नहीं है कि आपको इवेंट ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट देखना है. तो इसके लिए बाद में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम ज्यादा होती है जब आप पेमेंट करते हो और अकॉर्डिंगली पेमेंट कम ज्यादा होता है तो ये उस पीरियड का ट्रांजैक्शन है जो इस पीरियड में हुआ है. एंड फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी विल हैव टू से कि इंडेस 10 के अनुसार ये जो एडिशनल 1 रुपीज का यानी 10 मिलियन का एक्सपेंस है दिस विल बी बुक्ड इन 4-5 एंड नॉट इन 3-4 एज दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट फॉर 3-4. इस तरह से आप आंसर देख सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले पे आते हैं. Which of the following meet and do not meet the definition of financial instrument and are outside the scope of Ind AS 32? Cash deposited, so cash in itself is a financial instrument, it's a financial asset. Gold deposited in a bond bank is a non-financial item or a non-financial instrument, it's a commodity. Trade receivable, financial instrument, a financial asset, a debt instrument, financial instrument, a equity, financial. Prepaid is not a financial instrument क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है विच क्रिएट्स फाइनेंशियल एसेट फॉर वन पार्टी, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर. फाइनेंशियल एसेट के ज्यादातर एग्जांपल है. तो फाइनेंशियल एसेट इज कैश, राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज और राइट टू रिसीव इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटरप्राइज और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एक्सचेंज एसेट्स एंड लायबिलिटी अंडर फेवरेबल कंडीशंस पोटेंशियली. तो यहाँ पे आपको कोई कैश नहीं मिलने वाला है. सिंपल भाषा में फाइनेंशियल एसेट वो है जो कैश, इक्विटी शेयर या राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी शेयर है. यहाँ पे आपको सर्विस या गुड्स मिलेंगी. इंटर कॉर्पोरेट लोन्स और डिपॉजिट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि आपको इसमें पैसे मिलने वाले हैं वापस. डेफर्ड रेवेन्यू अपने आप में सिर्फ एक अकाउंटिंग एसेट है या अकाउंटिंग लायबिलिटी है तो ये नॉन फाइनेंशियल आइटम है. टैक्स क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है. फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली कहती है इट शुड अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट शुड बी अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश. दिस इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी टू और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू पे कैश. इनफैक्ट ये फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन से कवर होगा जो कहता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश एंड दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन. तो ये नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया. एंड प्रोविजन फॉर एस्टिमेटेड लिटिगेशन लॉस, ऑल प्रोविजंस आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ Ind AS 32 एंड आर कवर्ड अंडर Ind AS 31 एक्सेप्ट फाइनेंशियल गारंटीज. Hence this is also a non-financial item or outside the scope of 32. चलिए next, growth enters into an arrangement with a customer for infrastructure outsourcing deal. Based on the experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours to complete the project and charges 150 per hour. After incurring 100 hours, यानी 100 घंटे हम दे चुके हैं, customer agree to change the aspect of the project and increases the estimate of labor hours by 50 and rate per hour by 100. It is a question of Ind AS 115, modification of contract. हम कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लेते थे कि मैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक असाइनमेंट या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया. तो आपने लेट्स से कोचिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके अंतर्गत आपने कहा है कि भैया हम क्या करेंगे, हम आपकी क्लासेस ज्वाइन करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ लाइक 6 मंथ्स. बाद में या रेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है सिंपल कि मैंने 6 महीने के लिए किसी से जगह रेंट पे लिया, होटल में गया 5 दिन के लिए मैंने बुकिंग करी, फिर मैंने उसे एक्सटेंड करा लिया कि भैया 2 दिन और रुकूंगा या 3 महीने और पढ़ूंगा. तो ये जो एक्सटेंशन है क्या ये अपने आप में एक नया कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा या एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा? तो Ind AS 115 मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल कहता है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या इसमें जो प्राइस चार्ज की गई है वो इंडिपेंडेंट है
और अगर ऐसा नहीं है तो ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस केस में, क्योंकि एडिशनल 50 आवर्स 100 पर आवर चार्ज हुए हैं जबकि पहले वाले 150 पे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइस इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है या एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर एक्सटेंशन इंडिपेंडेंट नहीं होता है तो देन यू हैव टू थिंग्स, क्या गुड्स और सर्विस जो दिए जा रहे हैं वो डिस्टिंक्ट है, अगर ऐसा है तो फिर माना जाएगा कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल और नए कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस केस में आप कोई डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विस देने की बात नहीं कर रहे हो, उसी कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हुआ है, तो फिर क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, विच इज नथिंग बट रेट्रोएक्टिवली, या यू कह लीजिए कि आप ये सोचते हो कि जो रिवाइज टर्म्स है वही शुरू से अगर होती तो अभी तक कितना रेवेन्यू बुक किया होता उतना बुक कर लो, जो भी कम ज्यादा बुक किया उसे इसी साल एडजस्ट कर दो विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ अ रीस्टेटमेंट। तो टेक्निकली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर केस में आपने अभी तक कितना रेवेन्यू बुक कर लिया है। So in this question, ideally the amount of revenue which you would have recognized would be 100 hours into 150, which is 15,000 bucks. Whereas revenue to be recognized would be 100 hours into, अब एवरेज रेट आपका चेंज हो जाएगा, तो अब एवरेज कितना हो गया, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट की टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना है इन द कॉन्ट्रैक्ट, 200 into 150 plus 50 into 100, which is 35,000. Total hours to be spent is 250. So your rate per hour revised is 140. तो इसका मतलब 1000 revenue needs to be reversed. क्वेश्चन में पूछा है हाउ मॉडिफिकेशन विल बी अकाउंटेड, तो आप बोलोगे कि हम 1000 रुपए का रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे, कोई रीस्टेटमेंट नहीं करना है, कुछ नहीं है, सिंपल आप 14,000 का नेट रेवेन्यू बुक करोगे, क्योंकि मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग पूछी तो हम बोलेंगे 1000 रिवर्स करेंगे, ये पूछते अकाउंटिंग की आएगी तो हम बोलेंगे 14,000 इनकम बुक करेंगे। NKT Limited sells a product to customer for 1,21,000 which is payable 24 months after delivery. The customer obtains control at the product at contract inception. तो शुरू में ही मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में राइट मिल गया है, यानी कि सेल, या यूँ कह लीजिए कि द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इज द डेट ऑफ इंसेप्शन, तो सेल आज ही बुक हो गई, पर पैसे 2 साल बाद देने वाले हैं। तो अगर ये 2 साल बाद पैसे देना ट्रेड टर्म्स है, ऐसा कुछ है तो बात अलग है, पर कैश प्राइस से ज्यादा प्राइस है तो कैश प्राइस को सेल बुक कर दो और डिफरेंस को इंटरेस्ट इनकम ओवर द रिमेनिंग पीरियड बुक कर दो। क्वेश्चन में बोला है कॉन्ट्रैक्ट 90 दिन में रिटर्न परमिट करता है, इसका मतलब सेल आज बुक करें या 90 दिन बाद, वो पास्ट एक्सपीरियंस बताएगा। तो कहा गया है कि रिटर्न्स के कोई एविडेंसेस पास्ट में नहीं है तो सेल आज बुक कर सकते हैं। कैश सेलिंग प्राइस 1 लाख है तो सेल 1 लाख पे ही रिकॉर्ड होगी, रेवेन्यू 1 लाख पे ही रिकॉर्ड होगा, इसी को हम ट्रांजैक्शन प्राइस मानेंगे और बचे हुए को हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट 21,000 मानेंगे। एंटिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 80,000, तो 20,000 का प्रॉफिट अभी बुक हो जाएगा। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट 10% है, सही बात है, 1 लाख पे 10% 110 और उस पर 10% 11,121 हो जाएगा, तो वो अगले 2 साल में अकाउंट फॉर होगी एज एन इनकम। एनालाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंसिंग कंपोनेंट, तो हम बोलेंगे कि Ind AS 115 requires that whenever the consideration is deferred, the cash price is treated as the revenue under the contract. In this case, it will be 1 lakh, and the difference of the price charged and the cash price using effective interest rate, in this case 10% per annum, is recognized as an interest income over the remaining period. And then you have to compute the amount to be charged each year. तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशन करके बता दोगे, 10,000 और 11,000 फाइनेंसिंग इनकम बुक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू, ये एक थ्योरी क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड। इस चैप्टर में काफ़ी चेंजेस SM22 में किए गए हैं, बट यू डोंट हैव टू गेट इनटू दोस चेंजेस, एंड दिस आंसर इज आल्सो बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। इट इज मैंने एक अलग से वीडियो शेयर किया है और उस वीडियो के अंदर मैंने कुछ एक्सेल शीट शेयर की है 2022 के जो अमेंडमेंट्स हैं उसकी, जिसके अंतर्गत मैंने एक लिंक शेयर किया है
जिसमें इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से रिलेटेड इस तरह के और कुछ FAQs दिए गए हैं जिससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पहले पूछे भी हुए हैं. यू कैन चेक दैट लिंक एज वेल. वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड रोल फॉर IIRC? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इंटरनेशनल होगा तो इसका मतलब घुमा फिरा के ये कौन सी कमिटी लग रही है हमको. तो दिस लुक्स टू बी अ कमिटी विच इज बेसिकली एन International Integrated Reporting Committee or Council. So it is basically International Integrated Reporting Council. In relation to integrated reporting, तो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पूछा गया है क्या है. IIRC बेसिकली क्या है, it's a coalition, it's a group. और दिस coalition is formed by what? तो it is formed by 5 people. इसमें जो आंसर दिया है उसके बेसिस पे अगर कभी यही क्वेश्चन आ गया तो याद कराने के लिए आजकल RT-PCR बहुत चल रहा था, अपन इसको थोड़ा RT-PCR के बजाय ST और SIPCR कर देते हैं. बेसिकली ये कोएलिशन है जिसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है. तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जो ASM जैसे हमारे भारत में ICI है, तो ये लोग सबसे पहले इन्वॉल्व होंगे. स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटीज़ जिनका काम क्या होगा, बेसिकली इंटररेटेड रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क प्रिपेयर करना. इन्वेस्टर्स होंगे क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्ट उनको जा रही है, तो ये दो तो कोर होना चाहिए. देन प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स, NGOs and people affected by it. So for professionals, those kind of and then we will definitely also include what और क्या शामिल हो सकता है. तो जो कंपनियां जिनको रिपोर्ट करना है उनके भी रिप्रेजेंटेशन लिए जाते हैं कि भाई आप ये रिपोर्ट करना है, आपके लिए फिजिबल कितना है, प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स इसकी कितनी अच्छी होगी. एंड देन ऑब्वियसली द रेगुलेटर्स की सरकार क्या चाहती है. ऐसे भी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आज की तारीख में रिकमेंडेटरी है. It is not mandatory in India also, but then a lot of companies do follow this. ITC is one of those companies which follow the integrated reporting format. तो आप ये लिखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज सच दैट इट इज अ कोएलिशन ऑफ द सेट ऑफ पीपल हु काइंड ऑफ कंबाइन टुगेदर and decide the framework for integrated reporting, and based on this then they decide in terms of what is to be reported. रिपोर्टिंग कैसी होती है, तो रिपोर्टिंग में प्राइमरली हम 7 कैपिटल्स की बात करते हैं. तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट कंसिडरेशंस आर केप्ट इन माइंड. तो कंसिडरेशंस अगर आप चाहो तो बेसिक प्रिंसिपल्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इन्होंने आंसर में दिया है कि भाई हर कैपिटल जो अलग अलग तरह के साथ कैपिटल होते हैं, तो हर कैपिटल के फॉर्म में आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना होती है. चलिए, तो थ्योरी क्वेश्चन है याद करने के लिए. चलिए दोस्तों, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का क्वेश्चन हुआ. अगले क्वेश्चन पे आते हैं विच इज रिलेटिंग टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आई विल नॉट बी सॉल्विंग दिस होल क्वेश्चन, आई विल जस्ट क्विकली काइंड ऑफ डिस्कस दिस. वन ऑफ द वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑफ कंसोलिडेशन. देयर इज रियली नथिंग मच इन दिस. आई विल जस्ट काइंड ऑफ क्विकली ऑडिट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू. चले देखें अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है. It says 1st April 2001 A Limited acquired 80% share capital of S Limited. On acquisition date share capital and reserves stood at 5 and 1.25 lakh. तो मैंने बोला आपको जब भी अपन कंसोलिडेशन का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वी फोकस फर्स्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज 1st April 2001. पेरेंट का नाम यहाँ पे A है और सब्सिडरी का नाम यहाँ पे S है. ये 5 और 125 हमें काम आएगा नेट आइडेंटिफाइबल एसेट कैलकुलेट करने के लिए. A Limited paid initial cash consideration of 10 lakh, PC का पार्ट है. Additionally 2 lakh equity shares of nominal value 1 per share, current market value 1.8 है, तो इसका मतलब 3.60 PC में और ऐड हो जाएगा. And A Limited will also pay 5 lakh after 3 years, तो इसका मतलब PC में we will have to further add 5 lakh into present value factor for third year given in the question to be 0.75. ये तीनों का आप टोटल लगाओगे तो ये आपका PC आ जाएगा. ठीक है. Now which comes to like what? 5 into 0.75 plus 10 plus 3.6, 17.35. Cool. आगे कहा गया शेयर्स और डिफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड. यानी ए लिमिटेड की बुक्स में इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज होना बाकी है, यानी कैश पेमेंट की अकाउंटिंग एंट्री हो चुकी है, यानी इन्वेस्टमेंट 10 लाख पे आ रहा होगा. आगे आपको बैलेंस शीट ए और एस लिमिटेड की 2003 की दी गई है. देखो डेट पढ़ने से ध्यान से कितना फायदा होता है. 2 साल बाद की बैलेंस शीट है ये. बैलेंस शीट में आपको क्या दिया गया है, तो यू बीन गिवन एट इन्वेस्टमेंट एट 10 लाख विच इज ओके, क्योंकि आपको 2 अकाउंटिंग और करना बाकी है. तो उस अकाउंटिंग के अनुसार आइडियली इन्वेस्टमेंट मेरा कितने पे आना चाहिए था, तो इसमें मुझे 735 और ऐड करना पड़ेगा. 735 का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट 360 से तो मेरा कैपिटल प्लस रिजर्व बढ़ेगा, तो ये 200 का कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम आपका. ऑब्वियसली बात है हम एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ.
यहाँ पे देख लीजिए कि आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल के प्रोपोर्शन में आपने कोई बहुत सिग्निफिकेंट कैपिटल इशू नहीं किया, इसलिए रिवर्स एक्विजिशन नहीं है। प्लस डिफर्ड कंसिडरेशन आपको ऐड करना पड़ेगा। तो 360 यहाँ पे ऐड किया। डिफर्ड कंसिडरेशन आपने कितना कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू आपकी उस समय आई थी 5 इंटू 0.75 विच वॉज 375। पर अब आप 375 का डिफर्ड कंसिडरेशन नहीं दिखा सकते क्योंकि ये 1 अप्रैल 2001 को था। टुडे वी आर एट 31 मार्च 2003, 2 इयर्स लेटर। तो 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी आना चाहिए, तो आइडियली 0.91 से डिस्काउंट होके आना चाहिए। तो 5 इंटू 0.91 यानी 4.55 पे डिफर्ड कंसिडरेशन आएगा। अब ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्यों करंट लाइबिलिटी? क्योंकि अब 1 साल में पे करना है। तो टेक्निकली ये जो 2 साल का ब्याज था विच इज 455 और 375 का डिफरेंस, इसका क्या करें? ये आपने खर्चा बुक करना चाहिए था, नहीं हुआ है, तो आपको आपकी रिटेन्ड अर्निंग से 80,000 माइनस करने होंगे। दिस इज नथिंग बट 2 इयर्स का आपका ब्याज, क्योंकि लाइबिलिटी नजदीक आती जाएगी तो आपके इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होंगे। तो ये एडजस्टमेंट है आपके डेफर्ड कंसिडरेशन का। इसके अलावा एक बार बैलेंस शीट क्विकली पढ़ लेते हैं। पीपीए विच इज ओके, इन्वेस्टमेंट ठीक है, इन्वेंट्री रिसीवेबल कैश ऐड कर देंगे, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, नॉन करंट करंट लाइबिलिटीज ओके। No adjustment as such in the balance sheet. On date of acquisition, fair value of plant exceeded book value by 2 lakh. The plant has a life of 5 years. तो जब आप नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकालोगे तो उसमें 2 लाख आप और ऐड कर दीजिएगा। तो आपकी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट थी कितनी? अभी जो हमने कैलकुलेट करना है उसमें ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 6.25 थी, इसमें 2 लाख और ऐड हो जाएगा क्योंकि फेयर वैल्यू बढ़ी है और इसके कारण इसका एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 40K पर एनम। तो 2 साल का 80,000। आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का आप अलोकेशन करोगे तो 300 में आप देखिए प्रॉफिट्स आपके कैसे अलोकेट हो रहे हैं। आई एम जस्ट काइंड ऑफ ऑडिटिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी क्विकली फॉर यू। सॉल्व करते एकदम सिस्टमैटिकली तो बात अलग होती। तो इसमें 125 हमने निकाला था प्री है, तो 175 वुड बी पोस्ट। इसमें से एक तो 80 माइनस होगा एडिशनल डेप्रिसिएशन का। आगे कंसोलिडेटेड गुडविल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 258। अब ये गुडविल के इम्पेयरमेंट लॉस को एनसीआई तभी बेयर करेगा जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर किए, नहीं तो सिर्फ पेरेंट करेगा। ए लिमिटेड वैल्यूज एनसीआई यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड और 380 है। तो अगर आपकी एनसीआई 380 है तो फेयर वैल्यू पे है, तो ये कंसोलिडेशन की गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस दोनों बेयर करेंगे। तो इफेक्टिवली ये पोस्ट एक्विजिशन के आपके ये लॉसेस से एडजस्ट होगा, तो नेट लॉसेस आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स सी, कैलकुलेट कर लें अगर क्विकली गुडविल निकालना है तो कितनी आएगी। तो पीसी आपने कैलकुलेट किया था अभी 17.35 इफ आई एम राइट विथ माय फिगर्स। 10 प्लस 3.6 प्लस 3.75 17.35। एनसीआई आपकी क्वेश्चन में दी गई है फेयर वैल्यू पे 3.80 और नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स आपने निकाले हैं 6.25 प्लस 2 8.25। इस लॉजिक से गुडविल आना चाहिए आपकी 17.35 प्लस 3.8 माइनस 8.25 12.9 और 12.9 में अब आपको माइनस करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस 2.58 10.32। बताइए जी, तो ये 10.32 आपकी गुडविल आना चाहिए on 31st March 2003 in the consolidated financial statement. And rest adjustments we've kind of quickly discussed, you will be able to kind of solve it then. चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 April 2001 ABC gives you option to key managerial person employees to take either cash equivalent on 1000 shares और 1500 shares। तो ये 102 शेयर बेस्ड पेमेंट का क्वेश्चन है और पढ़ के लगता है इसमें इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ऐसे केस में अकाउंटिंग हम पूरे कैश सेटल यानी स्टॉक अप्रिसिएशन राइट की करते हैं, पर ग्रांड डेट पे अगर इक्विटी सेटल स्कीम में ग्रांड डेट की कैश सेटल स्कीम से अगर ज्यादा फेयर वैल्यू होती है तो उस एक्सेस फेयर वैल्यू को एडिशनली ओवर द वेस्टिंग पीरियड अलोकेट करके खर्चा बुक करते हैं। फाइनली अगर ऑप्शन वेस्ट होके शेयर्स चले जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, जो हमने टोटल इकट्ठा किया है वो हमारा कैपिटल प्रीमियम में जाएगा विथ एक्सरसाइज प्राइस। लेकिन अगर कैश इश्यू होती है तो जो हमने इक्विटी इकट्ठी करी थी वो इक्विटी को हम आखिर में रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा है मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 years, ये वेस्टिंग पीरियड है आपका। शेयर्स मस्ट बी टेकन बट बी केप्ट फॉर 3 years। दिस इज बेसिकली पोस्ट वेस्टिंग कंडीशन जिसे हम लॉक इन कहते हैं। इससे आपकी फेयर वैल्यू अफेक्ट होगी शेयर्स की।
तो शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रिस्ट्रिक्शन इज 102। तो ये फेयर वैल्यू है अगर लॉक इन पीरियड कंसिडर करते हैं तो। ग्रैंड डेट पे फेयर वैल्यू इसकी 113 थी, तो ठीक बात है। अब ये फेयर वैल्यू ऑप्शन की दी हुई है, या मान लो एक्सरसाइज प्राइस 0 है तो जो फेयर वैल्यू शेयर की है वही ऑप्शन की है, बट ऐसा हो सकता है ना भी हो, बट नेवरदलेस अपन यही मानेंगे कि ये फेयर वैल्यू सारी ऑप्शंस की। तो सबसे पहले आपको ग्रैंड डेट पे क्या करना चाहिए? कैश सेटल्ड स्टॉक अप्रिसिएशन राइट है, उसका कितना प्रोविजन बनता है या लाइबिलिटी का अमाउंट कितना आता है? अगर मैं ग्रॉस देखूं ग्रैंड डेट पे, तो आई वुड से कि मैंने टोटल कितने ऑप्शंस कैश के दिए हैं, 1000, और एक की कीमत है 113, और इक्विटी सेटल अगर करता हूं तो आई हैव गिवन 1500 ऑप्शंस, पर एक की कीमत है 102। तो 40,000 इज द एक्सेस ऑफ इक्विटी सेटल्ड ओवर कैश सेटल स्कीम। हेंस आप यूँ समझ लीजिए 20,000 पर एनम आपको एडिशनली एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट करना है, और इसे आप ट्रांसफर कहाँ करेंगे? शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व्स में एडिशनली। प्लस इसके बाद आपकी अकाउंटिंग जो होगी वो कैसी होगी? कैश सेटल यानी स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, कैश सेटल प्लान की। तो कैश सेटल प्लान की अकाउंटिंग कैसी होती है? तो हम सिंपली बोलेंगे कि ग्रैंड डेट पे हमें कोई अकाउंटिंग सोचने की जरूरत नहीं है। ईयर 1 की एंड में फेयर वैल्यू 120 है, ऑप्शन मैंने 1000 दिए हैं, और 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो मेरा खर्चा एज सच कितना बुक हो जाना चाहिए था? तो मेरा प्रोविजन फॉर एसएआर बुक हो जाना चाहिए था इस लॉजिक पे 60,000। शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व के लिए एडिशनली कितने बुक करना है? 20। तो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टोटल कितना बुक हो जाएगा? 80। ईयर टू एंड में अगर फेयर वैल्यू देखे तो 132 इंटू 1000 इंटू 2/2 हो गए, तो 1,32,000 क्यूमुलेटिव है, और 72 फॉर द ईयर हो गया एडिशनली। 20 प्लस मुझे और बुक करना है तो 92। इस लॉजिक से मेरा टोटल खर्चा कितना बुक जाएगा? 132 प्लस 40 विच इज 172। और फाइनली बोला है कि उन्होंने कैश ऑप्शन ले लिया है लोगों ने, तो इसका मतलब फिर मैं आपको फाइनल एंट्री एक्सरसाइज करने पे क्या होगी? तो प्रोविजन फॉर एसएआर लोगों ने 132 ऑन 1000 शेयर्स ले लिए होंगे, और जो एसबीपी रिजर्व आपने इकट्ठा किया है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि लोगों ने शेयर्स लिए नहीं है, वो 40,000 एक्यूमुलेट हुआ है, उसे आप सिंपल रिजर्व या इक्विटी करके ऐसी एंट्री डाल दीजिएगा। मॉड्यूल में कई बार इक्विटी यूज किया, कई बार रिजर्व यूज किया, इस तरह से आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। दिस इज द वे यू हैव टू काइंड ऑफ प्रेजेंट योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है आपसे फाइनली? बहुत बढ़िया। ये इंस्टीट्यूट ऐसी हरकत भी करता है क्या? नहीं। दिया है जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो आपको जर्नल एंट्रीज विद नरेशन हर साल की लिख के बताना पड़ेगी। तो एक एक एंट्री करेंगे, आखिरी की एंट्री जो आपकी क्रिटिकल हो सकती है पॉसिबली, वो मैंने आपको अलग से एक बार थोड़ी सी समझा दी कि किस तरह से आपको करना पड़ेगा। तो आपका खर्चा जो फर्स्ट ईयर में आएगा वो 80, सेकेंड ईयर में 92, और आखिर में ये सेटलमेंट की एंट्री हो जाएगी। ठीक है जी, नाम आपके हिसाब से आप दे सकते हैं कुछ भी, प्रोविजन फॉर एसएआर या शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी, सिमिलरली एसबीपी रिजर्व, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, या इक्विटी सेटल स्कीम रिजर्व, जो भी नाम आपको यूज करना। कूल। नेक्स्ट, 1st April 2001, A Limited acquired 12 crore shares representing 80% stake in B Limited by means of cash payment of 25 crore। तो ये 80% का पीसी हो गया। It is group policy to value NCI in subsidiaries on the date of acquisition at fair value, तो NCI fair value पे है। Market value of equity share in B Limited on 1st April 2001 can be used for fair valuation purpose। तो मार्केट वैल्यू इज 2, तो हमें ये 2 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू लेना है, ना कि पीसी। पीसी 2 से थोड़ा ज़्यादा का है नेवरदलेस। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी एनसीआई कितनी हो गई? तो 80% 12 करोड़ शेयर्स हैं,
तो 20% कितने होंगे, 1/4 3 करोड़ शेयर्स इंटू 2, तो 6 करोड़ की मेरी एनसीआई की फेयर वैल्यू हो गई। आगे 1 अप्रैल 2001 इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड शोड नेट एसेट एट 23 करोड़। तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होते तो ये नहीं होता, गुडविल निकल जाती। बट देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या पूछ रहा है। वी हैव डन अ फेयर वैल्यू एक्सरसाइज टू मेजर आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉलोइंग थिंग्स इमर्ज्ड। तो प्रॉपर्टी हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 15 करोड़ हैव एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ 18 करोड़, तो 3 से बढ़ जाएगा ये। प्लांट एंड इक्विपमेंट कैरिंग 11, एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू 13, तो ये भी 2 से बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री 2.5, फेयर वैल्यू 3, ये भी 0.5 से बढ़ जाएगी। यहाँ पे सब चीज फेयर वैल्यू पे ली जाती है इंक्लूडिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री भी ध्यान रखना बिजनेस कॉम्बिनेशन में नेट सेलिंग प्राइस पे नहीं ली जाती, फेयर वैल्यू पे ली जाती है। फिर उसकी आगे अकाउंटिंग एज पर इंड टू कॉस्ट विच विल बी द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस होगी। पर ध्यान रखना डेट ऑफ एक्विजिशन में कभी कंफ्यूज करने के लिए इन्वेंट्री की एनआरवी और फेयर वैल्यू देता है, फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे उसको। चलिए, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैव नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बी लिमिटेड, यानी कि बी लिमिटेड ने इसकी अकाउंटिंग अपनी बुक्स में नहीं करी है, ठीक है। In consolidated financial statement, fair value adjustment will be regarded as temporary difference for the purpose of computing deferred tax। अच्छा, इसमें deferred tax का एंगल डाल दिया गया। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं इसके कारण deferred tax इफेक्ट आएगा, जो बहुत आसानी से अपन कैलकुलेट कर लेंगे। रेट ऑफ deferred tax to temporary differences 20%। आपको पूछा है व्हाट इज द deferred tax impact and also calculate the goodwill arising on acquisition of B Limited। तो जब भी deferred tax होता है तो पहले deferred tax निकाला जाता है, फिर उसकी goodwill कैलकुलेट करी जाएगी। So now in this case, how do we solve this particular situation? तो इसमें क्या करेंगे हम, तो डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका है। क्योंकि कंसोलिडेशन हुआ है, यानी आपने शेयर्स खरीदे, यानी सब्सिडी की जो बुक वैल्यू या जो उसके एग्जिस्टिंग टैक्स बेस है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो चेंजेस इन फेयर वैल्यू जितनी भी हुई है पूरे के ऊपर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको इनकम टैक्स में आपने सब्सिडरी की 100 रुपए की एसेट को 150 का माना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स तो लीगल एंटिटी के कैरिंग अमाउंट या उसके खुद के टैक्स बेस के बेसिस पे उसको डेप्री देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कंसोलिडेटेड में कितने पे बुक कर रहे हैं। तो डेफर्ड टैक्स का सिंपल इम्पैक्ट क्या होगा, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कितने से बढ़ाई गई है 8, तो इसे क्या माना जाएगा, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। 8 से नहीं बढ़ाइए सर, क्या कर रहे हो, 15 से 18, 3 से बढ़िया। तो ये 3 टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आप असेट का कैरिंग अमाउंट ज्यादा होता है टैक्स बेस से, तो उसको टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस मानते हैं। तो यहाँ पे सभी केस में ऐसे ही हुआ है, तो बस प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 करोड़ का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस होगा, और इन्वेंट्री के केस में 0.5 का टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। इस पे 20% का आपका टैक्स रेट अज्यूमिंग यही फ्यूचर टैक्स रेट भी है, क्योंकि दिया हुआ है इस पे यही कैलकुलेट करना है। 1.1 का डीटीएल बन जाएगा। तो गुडविल निकालने के लिए हमने पीसी कैलकुलेट किया था 25 क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीआई कैलकुलेट की थी 6, नेट आइडेंटिफाइबल एसेट हमारी क्या थी, तो गिवन है हमारी 23, उसमें फेयर वैल्यू के हमारे एडजस्टमेंट सारे मिला के 5.5 के हुए, और डीटीएल 1.1 से माइनस हो गया, तो 27.4 हो गया। $3.6 की मेरी गुडविल आ गई ऑन एक्विजिशन डेट विथ 1.1 का डीटीएल। बढ़िया, नेक्स्ट। Narayan Limited provides you the following information and asks you to calculate tax expense for each quarter, assuming there is no difference between the estimated taxable income and the estimated accounting income। तो इसका मतलब आपको ये कहा गया है कि टैक्सेबल इनकम और अकाउंटिंग इनकम सेम है। ग्रॉस एनुअल इनकम आपको 33 लाख दी है, जिसमें कैपिटल गेन 8 लाख का है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपली क्या करने का, स्प्लिट। चलो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देन estimated income of quarter 1 is 7 lakh, quarter 2 is 8 lakh, quarter 3 including estimated capital gain is 8 lakh, capital gain of 8 lakh is 12 lakh।
एंड Q4 is 6 लाख। तो इसका मतलब ये हो गया 7, 8 कैपिटल गेन छोड़ के 4 और 6, टोटल हो रहा है हमारा कितना 25, विच इज करेक्ट। 25 + 8 का कैपिटल गेन। तो जो सोचा था एक्चुअल में वैसा ही हुआ। अच्छा ये बोला है एस्टिमेटेड और एक्चुअल में फर्क नहीं है, तो जो सोचा था वही हुआ। अब यहाँ पे स्लैब रेट्स दिए गए हैं, तो कैपिटल गेन का तो स्पेसिफिक रेट है, उससे उसको टैक्स कर देना, बाकी पे स्लैब रेट है तो आपको वेटेड एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलता है, तो सिंपली आप क्या करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, आप ये बोलोगे आपकी नॉर्मल इनकम कितनी एक्सपेक्टेड है एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन्स, क्योंकि उस पर स्लैब रेट नहीं लग रहा है, वो स्पेसिफिक है। तो वो आपकी एक्सपेक्टेड है 25 लाख। इस पे टैक्स कितना लगेगा, शुरू के 5 लाख पे 30%, अगले 20 लाख पे 40%, तो 8 + 1.5 9.5 लाख। आपका टैक्स रेट कितना आ जाएगा 38%। तो आपको टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, तो फॉर योर Q1 Q2 Q3 Q4 आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो दिए गए हैं दैट इज 7, 8, 12 एंड 6। इसका टैक्स एक्सपेंस आप 7 पे 38% लगा लेना, 8 पे 38% लगाना, यहाँ 4 पे 38% और जो 8 का कैपिटल गेन है उस पर स्पेसिफिक 12%, और यहाँ पे 6 पे 38%। ये आपका टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा। क्वेश्चन में फाइनली आपसे पूछा क्या गया है टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है फॉर ईच क्वार्टर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ हैंडल दिस वेल। ठीक है, सो नथिंग मच, इज दैट स्लैब रेट्स अगर आते हैं तो, क्योंकि इंडिया में हम कंपनीज पे इंडेक्स लगाते हैं और कंपनीज पे आज की तारीख में भारत में स्लैब रेट्स नहीं है। स्लैब रेट का मतलब क्या होता है, इतनी इनकम पे इतना रेट, बची हुई इनकम पे बचा हुआ रेट, अदर रेट। ऐसा होता नहीं है इंडिया में एक्सेप्ट फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ। तो हमारे लिए इसका रेलेवेंस एज कम हो सकता है, पर इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया एग्जाम में तो तुम ये तो बोलोगे नहीं इंडिया में होता नहीं है, तुमको आंसर ही देना पड़ेगा, तो बेहतर है कि आप समझ लो इन चीज़ों को। एनीवेज, नेक्स्ट, ABC company issues 10,000 compulsorily convertible preference shares, 150 each. The rate of dividend is 10% every year. हालांकि ये रिपीट क्वेश्चन है, बट देन आई वुड मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट। 10% इसमें पेबल एवरी ईयर है, और जब ऐसा लिखा रहता है तो इंस्टीट्यूट मान लेगा कि ये मैंडेटरी है। अब ये कंपल्सरली कन्वर्टेबल है, इसका मतलब ये कन्वर्ट ही होने वाले हैं किसमें, प्रेफरेंस शेयर्स में। द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इन फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5000 एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो इसका मतलब इसका जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो इक्विटी माना जाएगा। When CCCPS are issued, the prevailing market interest rate for similar debt without conversion option is 15% per annum. तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके काम आएगा, जो इसमें इंटरेस्ट आउटफ्लो होने वाला है वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उतने की लाइबिलिटी बुक करें। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% ऑफ द प्रोसीड्स, इसका मतलब कि 150 15 लाख का 2%, यानी कि 30,000 आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट स्ट्रिप है दैट इज फाइनेंशियल लाइबिलिटी, पर जो प्रिंसिपल पार्ट है दैट इज इक्विटी। और हमने पढ़ा है कि जब भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट CFI में आती है तो उसे हम इनिशियल रिकॉग्निशन पे जिस वैल्यू पे हमारी इक्विटी और फाइनेंशियल लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई है सेम रेशियो में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को एलोकेट करते हैं। इक्विटी वाला रिजर्व से एडजस्ट होता है, लाइबिलिटी वाले को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट में इंपैक्ट दिया जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है फेस वैल्यू शेयर्स की आपकी 150 है, और इक्विटी शेयर जब कन्वर्ट होंगे तो उसकी वैल्यू 10 है। ये आपको जर्नल एंट्री करने के काम आएगी। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 15.86% है। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो अलोकेट होगी ना उसके बाद इतना रेट आ जाएगा। आपको बोला है कि आपको लाइबिलिटी और इक्विटी कंपोनेंट निकालना है, जर्नल एंट्री एंटायर अरेंजमेंट की देनी है। जब भी ऐसा पूछा जाए तो एग्जाम में नरेशन भी देना, 12 मार्क मिलते हैं। फ्रॉम द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर कीपिंग प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट इंडेक्स इन माइंड। तो इसमें लाइबिलिटी पोर्शन आपका कितना आएगा, तो क्योंकि आपकी फेस वैल्यू भी 150 है, 15 लाख का ही प्रेफरेंस शेयर है, 10% से इस पे 1.5 लाख हर साल आपको ब्याज देना है 5 साल तक। तो आपकी लाइबिलिटी कंपोनेंट विल बी 1 डिवाइड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15। 1 2 3 4 5 जीटी करें आप लोग, मेरे पास जीटी नहीं है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, 3.35 जो भी है इंटू 1,50,000, 5,02,823 रुपये। तो इसका मतलब जो टोटल पैसा मुझे मिला है 15 लाख, इसमें 502,823 इज द लाइबिलिटी कंपोनेंट।
Nope. Sorry. I have 10,000 compulsorily convertible preference shares into face value of preference share is 150 rupees into interest which I have to pay is 10% per annum. तो 1,50,000 रुपीज, ठीक बात है. 1,50,000 का मुझे ब्याज देना है. कितने सालों तक? 5 सालों तक. मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो एन्युटी फैक्टर हमने निकाला था आई थिंक 3.3521. तो 5,02,815 समवेयर अराउंड दिस वुड बी योर लाइबिलिटी कंपोनेंट. टोटल पैसे आए कितने आपके पास? 15 लाख. इसमें से 5 लाख आपका क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी कंपोनेंट. बचा हुआ इक्विटी कंपोनेंट. तो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 30,000 इसी रेशियो में एलोकेट होगी. You have received a total of 15 lakh, जिसमें what is the financial liability component and what is the equity component. तो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्प्लिट किया तो ये आ जाएगा आपका, क्या निकाला है हमने, 502,815. आई डोंट नो इंस्टीट्यूट ने इसको एग्जैक्टली कितना लिया है. तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका 99,711,185. तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसी रेशियो में एलोकेट हो जाएगी. into 30,000 divided by 3 lakh which is 2%. आप सीधे भी कर सकते थे 19,943. तो अब आप इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे, तो ये जो है ये तो रिजर्व से डेबिट होगा, बट ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देगी क्योंकि पैसे आपके पास इतने आए उसमें से इतने चले गए. तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नेट 492759 पे बुक होगी इनिशियल रिकग्निशन, और इससे टेबल शुरू होगा. तो ये टेबल में ये ओपनिंग वैल्यू आएगी और 15.86% इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है. इससे आप इसे सॉल्व करोगे फॉर 5 years, आपका रीपेमेंट हर साल का 1,50,000 bucks है. तो आपका बैलेंस एट द एंड ऑफ 5th year नील हो जाएगा. थोड़ा सा हो सकता है राउंडिंग ऑफ का फर्क हो, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशंस किए हैं वी बेसिकली डन, वी टेकन ऑन कैलकुलेटर द प्रेजेंट वैल्यू, तो वो आखिरी तक के डेसिमल्स आए तो उस कारण से हो सकता है थोड़ा सा फर्क है. चलिए, तो इंस्टीट्यूट का अगर आप सजेस्टेड आंसर देखेंगे तो उसमें व्हाट दे हैव टेकन हियर इज 502,950. तो ये तो ठीक है, ये 502,950 लिया है, थोड़ा सा फर्क है. एग्जाम में ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो नॉर्मली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो एन्युटी फैक्टर क्वेश्चन में दे देते हैं, वो यूज करके आपका सजेस्टेड आंसर और ये मैच करेगा. ओपनिंग लाइबिलिटी आपकी 492,891 आ रही है, हमारी 100-125 रुपये 125 का कुछ फर्क आएगा. 492,851 492,759, दैट्स ओके. और सारी जर्नल एंट्रीज आपको देना पड़ेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंस्टीट्यूट काफी पूछता है. कूल, वंडरफुल. नेक्स्ट, पीबीटी आपको दिया हुआ 100,000 और टैक्सेबल प्रॉफिट 104 है. डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट रोज एज फॉलोस. स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. तो आपका टैक्सेबल 104 है और ये 100 है, तो आपको करंट टैक्स 104 पे देना पड़ेगा. 1st February रिक्वायर्ड मशीन फॉर 120,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन ऑन मंथली बेसिस, यानी 2 महीने का लगा. अंडर टैक्स लॉ मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड फॉर 6 months, और वहाँ पे 6 महीने का लगता है, वो ब्लॉक बेसिस एंड 6 months लेस देन मोर देन वाला लॉजिक चलता है. लाइफ 10 साल है तो 1 साल का 12 हो गया, 1 महीने का 1 हो गया. तो अकाउंट्स में डेप कितना चार्ज हुआ है 2,000, जबकि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन आपने 6 महीने का 6 क्लेम किया होगा, तो डिफरेंस कितना हो गया 4. तो इससे आपके टैक्सेबल प्रॉफिट 4,000 से कम होंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है. तो ये एडजस्टमेंट के कारण आइडियली आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है
या यूँ कह लो ये टैक्सेबल प्रॉफिट अभी आपको कितना दिया गया, इट इज़ बीन गिवन टू 104। अगर ये वाला एडजस्टमेंट नहीं होता तो ये 108 हो जाता, क्योंकि वहाँ पे आपने ज़्यादा डिप्रिसिएशन क्लेम किया। या अकाउंट्स में आप ये डिप्री ज़्यादा क्लेम करते तो आपका अकाउंट्स 96 हो जाता, तो डिफरेंस आपका 8 का आ जाता। आगे 1-2 में 8000 का एक्सपेंस डोनेशन का, ये डिडक्टेबल नहीं है, तो आपकी इस कारण से टैक्सेबल इनकम बढ़ी हुई होगी, तो इसको माइनस करोगे तो ये 100 हो जाएगी। तो यही 100 है जो बुक्स में आ रही है। एनीवे जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको बोला है करंट और डिफर्ड टैक्स के हिसाब से आपको एंट्री पास करना है। तो सबसे पहले आप करंट टैक्स 104 इंटू टैक्स रेट 25% से ले लीजिए, तो 26 आपका करंट टैक्स एक्सपेंस है, खत्म। डिफर्ड टैक्स किस पे बनेगा, तो डिफर्ड टैक्स बेसिकली बनता है डिफरेंस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इससे कोई एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, इससे जरूर आएगा। तो मेरी मशीन का अगर मैं देखूं तो टैक्स और अकाउंट्स दोनों में 1 फरवरी को कैरिंग अमाउंट इनका 120 आ रहा था, पर 31 मार्च पे ये 114 और ये 118 आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस इनिशियली 0 था, यहाँ पे 4 का हो गया है। और अगर कैरिंग अमाउंट असेट का ज़्यादा आता है टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है, ऑन विच टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस यू विल हैव टू क्रिएट अ DTL 25% ऑफ 1। तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो 26 + 127 हो जाएगा, जो कि सही भी है। क्यों? क्योंकि टेक्निकली आप देखो अकाउंट्स में आपने 100 का खर्चा बुक किया है, सॉरी 100 का प्रॉफिट है आफ्टर 8 डोनेशन, जो कि नॉन डिडक्टेबल है, तो ऐड बैक करेंगे तो 108 उसके ऊपर आपका टैक्स एक्सपेंस बुक होना चाहिए था, रिकंसिलिएशन समझने के लिए। हालांकि इसमें बोलते हैं आप टैक्स रिकंसिलिएशन एब्सोल्यूट नंबर एज वेल एज टैक्स रेट रिकंसिलिएशन दो, तो आप टैक्स रेट रिकंसिलिएशन में इफेक्टिवली बता देना कि हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट 27% हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स एक्सपेंस कितना हो गया, सब मिला जुला के 27 ऑन 100 का प्रॉफिट। तो आप सोल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। WLL इनकॉर्पोरेटेड 1 अप्रैल 2001 पे, ये आपका इंडेस 12 का क्वेश्चन था। 31 मार्च 2004 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। PPE की आपको लाइफ दी गई है 2004, यानी 2001 के बाद 2 साल निकल चुके हैं, 3 साल निकल चुके हैं, 2001 to 2004, आफ्टर 3 years. Entity decides to review the useful life of property, plant, equipment. Definitely it can do that. It should do that every year. It hired external valuation expert. Very nice. These independent experts certified the remaining useful life of PP. तो ध्यान रखना ये remaining useful life है on 1 April 2004. तो ये आपकी नई लाइफ है। आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ PP। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये कब की कॉस्ट होगी आपकी, 2001 की, 1 April 2001 की। Compute the impact on statement of profit and loss for year ending 31st March 2005 if WLL decides to change the useful life of property, plant and equipment in compliance with recommendation of external valuation expert. तो आपको इम्पैक्ट पूछा है। इम्पैक्ट मतलब पहले कितना लगा रहे थे और अभी कितना है। तो ये पुराने मेथड से अगर मैं देखूं तो 150 लाख अपॉन 15 डेप्री लग रहा था 10, 100 लाख अपॉन 10 वापस 10, 35 लाख अपॉन 7 एज एन 5, तो 25 का लग रहा था पर एनम। नए मेथड से सबसे पहली बात, अब इसकी वैल्यू इतनी बची नहीं है, और क्योंकि चेंज इन एस्टिमेट को हम प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट फॉर करते हैं, तो 3 साल में कितना डेप्री लग चुका होगा जो हमने पुराने फिगर्स या लाइफ से कैलकुलेट किया होगा। तो ये 120, 70 और 20 पे आ रहा होगा। 10 साल, 7 साल, 5 साल, 12, 10, 4, 26 इस साल पे लगेगा, तो 1 लाख का इम्पैक्ट आएगा बस। आगे, assume that there was no salvage value for 3 components of PP either initially or useful life revised। ठीक है, तो 1 लाख का इम्पैक्ट है, बस आपको ये एक्सप्लेन करना है। इतना सिंपल, इससे आसान क्या होगा। Okay, next. Swan has been recently hired by Zio Life Limited. Oh, Jio, ये दूसरा Zio है। Since he is facing difficulty in computation of EPS under Ind AS 33, guide him discussing the steps for calculation of basic and diluted EPS along with computation of EPS for year 1. उससे नहीं बन रहा है तो अपने से बनवा रहे हैं। नेट प्रॉफिट 46 लाख है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग 1 April ईयर 1
30 लाख से। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट है, इक्विटी या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर नहीं है, तो प्रेफरेंस शेयर वगैरह अगर होंगे तो उसका डिविडेंड माइनस होगा, पर जरूरी नहीं है हो इस क्वेश्चन में। लेट्स सी व्हाट इट सेज। फॉलोइंग फैक्ट्स आर आल्सो रेलेवेंट फॉर ईयर 1। 1st April, Zio Life issued 20 lakh 3-year convertible bonds of 1 rupee each. Zio Life has an option to settle the principal amount in ordinary share, इसी की बात हो रही है शायद। Every 10 bonds are convertible into 1 ordinary share और कैश ऑन सेटलमेंट डेट। तो ये ऑप्शन कंपनी के पास है, और कंपनी के पास ऑप्शन होता है तो इसे इक्विटी मानते हो। फिक्स नंबर ऑफ शेयर या कैश देना है तो हम मानेंगे फिक्स नंबर ऑफ शेयर कंपनी दे सकती है, इसका मतलब ये इक्विटी। एनी विच वेज पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पूछते हैं तो ये सोचना पड़ता। यहाँ पे ये पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है बिकॉज इट इज केपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, though it is in the hands of the company. The principal amount of the bond classified as equity instrument and interest is classified as financial liability. तो ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम इक्विटी मान रहे हैं और इंटरेस्ट को हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी मान रहे हैं। The interest expense relating to liability component is just 1800. अच्छा, and it is tax deductible 40% से। तो आपको बोला EPS निकालो, तो सिंपल सी बात है कि नेट प्रॉफिट 46 लाख दिया हुआ है। ऑब्वियसली बात है ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो ये माइनस हो चुका होगा, तो एडजस्टमेंट नहीं करना है। तो बेसिक ईपीएस सिंपल 46 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख विल बी 1.53। डाइल्यूटेड ईपीएस हमारी पोस्ट टैक्स सेविंग हो जाएगी अगर ये कन्वर्ट हो जाता तो कितनी, 1800 का 60%। नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ जाएंगे, तो 20 लाख कन्वर्टेबल बॉन्ड है और 10 बॉन्ड एक शेयर में कन्वर्ट होंगे, यानी 2 लाख शेयर्स। तो इसका मतलब 46 लाख 1080 अपॉन 32 लाख, $1.4378। ये आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाना चाहिए, कंसिडरिंग व्हाट आपका तो मैंने डायरेक्ट निकाल के आपको दे दिया, कंसिडरिंग पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर का इम्पैक्ट। इसमें इन्होंने आपसे ये पूछा है कि गाइड हिम बाय डिस्कसिंग द स्टेप्स। तो ये कैलकुलेशन का आप एग्जाम में आंसर ऐसे नहीं बनाओगे, आप प्रॉपर सारे स्टेप्स लिखना। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में स्टेप्स क्या लगते थे, सबसे पहले पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर, फिर उसमें कितने डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर है, यानी इस पर्टिकुलर केस में बी 2 लाख। फिर ये डाइल्यूटिव है या नहीं है, तो इसका अपन निकालते थे बेसिकली, या तो आप रैंकिंग निकालते थे, एक से ज़्यादा होते थे। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे तो रैंकिंग निकालेंगे तो ये आएगा बेसिकली 1080 डिवाइडेड बाय 2 लाख, तो 0.005। और क्योंकि हमारा बेसिक ईपीएस उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा है तो हम ये बोलेंगे डाइल्यूटिव नेचर के। रैंकिंग इसकी ऑन सिंगल शेयर है तो वही रहेगी, और इसे फिर डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करके ये ईपीएस कैलकुलेट होगा। तो स्टेप्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली लुक एट इट। हाउएवर आई हैव माय ओन कंसर्न्स with this solution just because of this particular fact that Zio Life has an option to settle the principal amount in ordinary shares. एएस के अनुसार ये जो आंसर बनाया ये बिल्कुल परफेक्ट है। इंडेस के अनुसार जब कंपनी के पास ऑप्शन होता है तो थिंग्स पॉसिबली कुड बी अ लिटिल डिफरेंट, दैट नीड्स अ स्पेसिफिक डिस्कशन, but I don't want to get into that particular aspect for the moment for the very simple reason that जो इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन दिया है अभी अपन उसी पे स्टिक करते हैं। क्या इंस्टीट्यूट पे कुछ इस पे अपन सवाल रेस करें, कंप्लेन रेस करें, या आप कुछ बताओ तो हम पूछें? कुछ होता नहीं है उससे दोस्तों, जवाब आते नहीं है तो सजेस्टेड आंसर इससे ही कॉपी होते हैं, क्योंकि आज भी हमारे इंस्टीट्यूट में
बोर्ड ऑफ स्टडीज ही सजेस्टेड आंसर बनाता है, भले ही क्वेश्चन पेपर आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बनाता है। तो इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट फॉर द मोमेंट। ये आखिरी वाला क्वेश्चन देख लें, इसमें भी एक छोटी सी गलती है, वो भले ही आप इंस्टीट्यूट से पूछ लेना, क्यों? क्योंकि ये आंसर पुराने प्रोविजंस के बेसिस पे दिया हुआ है, नए प्रोविजंस के अनुसार आंसर में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। सीएसआर का क्वेश्चन है, Royal Limited is a company which has a net worth of 200 crore engaged in manufacturing of rubber products. The sale of the company are badly affected due to pandemic during 2003-4. ठीक है भैया, नेटवर्थ 200 करोड़ है, इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स आपको दी हुई है। 3-4 करंट ईयर है ये, नेट प्रॉफिट सेल्स टर्नओवर है और पिछले 3 साल का है। Various commercial activities are undertaken with considerable concession discount along with the related affected areas. Management intends to highlight expenditure incurred on such activity as expenditure incurred undertaken to discharge corporate social responsibility while publishing financial statement of the current year. तो हमने कई कमर्शियल एक्टिविटीज डिस्काउंट पे लिए और स्पेसिफिकली सेक्शन 135 कहता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट डिस्काउंट पे बेचते हो तो उसे सीएसआर नहीं मान सकते, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट माना जाएगा। सीएसआर में ऐसे भी सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट अगर अपनी कॉस्ट से कम पे बेच रहे हो तो जितना आप कॉस्ट सैक्रिफाइस कर रहे हो सिर्फ उतना ही सीएसआर में शामिल किया जा सकता है। You are requested to advise CFO of Royal Limited on below points. Whether company has obligation to form a CSR committee since applicability criteria are not satisfied in current financial year. तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है, इसका टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है और नेट प्रॉफिट्स 5 करोड़ से कम है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हम पे सीएसआर नहीं लगेगा, लेकिन सीएसआर तब लगता है जब पिछले 3 सालों में आपने किसी भी पर्टिकुलर ईयर में क्या किया हो, आपने लिमिट सरपास कर दी हो। तो अगर मैं पिछले 3 साल में देखता हूं तो आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में ही मैंने लिमिट सरपास कर दी थी। कौन सी 3 लिमिट है? 5 प्रॉफिट, 500 नेटवर्थ, 1000 टर्नओवर। पिछले साल मेरे प्रॉफिट क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा थे, इसलिए मुझ पे सीएसआर इस साल तो क्या अगले 2 साल और लगेगा कम से कम, भले ही मैं लिमिट से नीचे रहूं। तो सेक्शन 135 के प्रोविजन कहते हैं दैट इफ द कंपनी इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स हैज, और इनफैक्ट वो ऐसा कहता है कि इफ इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर द कंपनी हैज you can say has fulfilled any of the 3 limits, any of the 3, 5, 500 or 1000 crores ki, then in that case CSR is applicable. Once applicable, it is applicable for next 3 years for sure, unless the company remains for consecutive 3 years within the limit, then from the 4th year CSR would not be applicable. तो सीएसआर आपके ऊपर एप्लीकेबल है क्या? सीएसआर का खर्चा करना, हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। और अगर है तो आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, आप सुनना ध्यान से। खर्चा करना पड़ता है पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%, जो है यहाँ पे 15.5 डिवाइड बाय 3 इंटू 2%। तो ये आपका खर्चा है 10 लाख कुछ रुपए का। अभी सितंबर 2020 में एक अमेंडमेंट आया था जो 22 जनवरी 2021, 22 जनवरी 2021 से इफेक्टिव हुआ, जिसके अंदर कहा गया कि अगर आपका सीएसआर स्पेंड टोटल 50 लाख रुपए से कम है तो आपको सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीएसआर कमेटी के फंक्शंस फुलफिल करके सीएसआर के खर्चे करेगा। क्वेश्चन ने पूछा है क्या कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू फॉर्म सीएसआर कमेटी सिंस द एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया इज नॉट सैटिस्फाइड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? द आंसर शुड बी सीएसआर कमेटी फॉर्म करने का तो कोई हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, एज द सीएसआर स्पेंड इज टू बी लेस देन 50 लाख। लेकिन आप आंसर देखोगे तो सजेस्टेड आंसर में क्या बोला है, ये मैं कहता हूं, आप आईसीआई से पूछ लेना लिख के उनको मेल करके। बट अगर सजेस्टेड आंसर आप देखोगे तो उसमें क्या बोला है कि यस, एज सीएसआर लिमिट्स have been, company is within CSR limit in last year. मेरा कहना है सीएसआर का खर्चा करना है क्या? हाँ करना है, पर सीएसआर कमेटी बनानी है क्या? नहीं, क्योंकि खर्चा करना और कमेटी बनाने की अलग अलग लिमिट है। आप पे अगर सीएसआर की एप्लीकेबिलिटी है तो खर्चा करना है, पर कमेटी बनाने की जरूरत सिर्फ तब है जब आपका सीएसआर स्पेंड 50 लाख रुपए उससे ज्यादा है। आपका क्योंकि सीएसआर स्पेंड 10 लाख के आसपास कुछ है, इसलिए सीएसआर कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में क्या करें, आप तो लिख देना सीएसआर बनाना पड़ेगा, इसलिए कमेटी भी बनाना पड़ेगी। हालांकि 22 जनवरी 2021 से इफेक्टिव अमेंडमेंट के अंतर्गत कंपनी में नॉट मेक अ सीएसआर कमेटी एंड द बोर्ड इटसेल्फ कैन परफॉर्म द फंक्शन, ऐसा लिख दीजिएगा आप एग्जाम में। Whether accounting of expenditure during pandemic period treated as expenditure on CSR is according to the view of accountant of the company.
is correct. The answer is no, it is not correct because ordinary course में किए गए खर्चे CSR के खर्चे नहीं मानते. कंसेशनल खर्चे भी CSR के खर्चे, कंसेशनल रेट पे सप्लाई किए गए प्रोडक्ट CSR नहीं माने जाते. सिर्फ जो आपने कॉस्ट इनकर करी होती है कोई ही आप CSR का एक्सपेंस मान सकते हैं. चलिए, Telco Limited enters into a 2-year contract for internet service with customer C. C also buys a modem and a router T Limited and obtains title to the equipment. 115 का क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेट सर्विस के लिए किया गया है जिसमें आपको इंटरनेट सर्विस, मोडम और राउटर 3 चीज़ें मिली है. T Limited does not require customer to purchase its modem and router and will provide internet service to customer using other equipment which is capable with T Limited's network. तो आप मोडम राउटर मार्केट का भी ले लेते तो भी चल जाता, कोई कंपलसरी नहीं लेना, आपकी इच्छा. There is a secondary market in which modems and router can be bought or sold for amount greater than scrap value. और ये मोडम राउटर आपने जो खरीदा है या मार्केट में कंपनी भी चाहे तो बेच सकती है, उसका मार्केट है अपने आप में. तो कितने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे there are 3 independent performance obligation in this contract. कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, क्यों? क्योंकि ये कलेक्टिवली किया गया है. 3 पीओ है. जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा गुड्स और सर्विस दी जाती है तो उसमें आपको क्या देखना होता है. तो अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहले क्या ये आपस में इंडिपेंडेंट डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज मानी जाएंगी और क्या इसका परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट किया जा सकता है. तो इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस हो सकता है, आप मार्केट से खरीद सकते थे मॉडल राउटर, तो माना जाएगा कि इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस है. एंड सेकंड, क्या इस पर्टिकुलर केस में आप सर्विसेज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म, गुड्स और सर्विस डिस्टिंक्ट है, तो क्या गुड्स एंड सर्विस कब डिस्टिंक्ट माने जाते हैं. तो अगर कंपनी उनके इंटीग्रेशन पे एम्फेसिस करती है या उनका एक दूसरे के साथ चलना इंटरडिपेंडेंट है, दैट मीन्स यू कैन नॉट बेसिकली इन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ यू विल हैव टू यूज इट एज अ कॉम्बिनेशन, या निगोशिएशन आपका कलेक्टिवली हो रहा है, तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में माना जाएगा कि ये सब मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ पे ऐसा नहीं, ये सब मिला के एक पीओ है, पर यहाँ ऐसा नहीं है. तो ये 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है ना, बोलेंगे these are all 3 different periods. चलिए, तो we spent a lot of time actually, we thought we'll do a little quickly, but then थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में अपन ने डिस्कस कर लिया. Nevertheless, this kind of completes our discussion on the mock test paper number 1 for December 21 exams of financial reporting. This video is definitely relevant for all students having their attempts starting from December 21 and onwards. Obviously बात है जिसका दिसंबर 21 है, दुआ है हमारी भगवान से कि दिसंबर 21 पे कंप्लीट हो जाए और जिनके आगे के अटेम्प्ट है वो आगे देते रहें. Nevertheless, चलिए, थैंक यू.